Hello everyone and welcome to Examination Catalyst. So today we are going to start the previous year important questions for subject food and nutrition. So what happens is कि either तो questions repeat होते हैं from previous year questions और they are somewhat related to it, like मतलब option से कुछ question निकल जाएगा, they are somewhat related. So what we will do is we will start the previous year question and also will explain the material related to it. So here comes the first question. During fevers with every 18 degree Fahrenheit increase in body temperature, the basal metabolic rate changes by option A 7% increase, option B 7% decrease, option C 5% increase, option D 5% decrease. So जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ फर्स्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट इज़ इन अनदर वर्ड्स बेसिक मेटाबॉलिक रेट. तो इट इज़ द बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन द बॉडी फंक्शनिंग, लाइक हमारी ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेल ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व फंक्शन. इन सब चीज़ों के लिए एक बेसिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है फॉर, तो दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट. So an individual's basal metabolic rate accounts for about 60 to 75% of the calories you burn every day. Calories is the unit of the energy. तो अगर हम BMI का कैलकुलेशन देखें तो इट वुड बी हाइट एंड वेट. तो BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो there is a particular range. From that we can decide that one is underweight, healthy range, or overweight or obese. तो this is from 18.5 to 25 it is healthy. Like अगर आपका BMI अपना वेट और हाइट से 18.5 और 25 के बीच में आता है तो यू आर परफेक्टली हेल्दी. अगर आपका 18.5 से कम आता है then you are underweight and you should take some foods to increase your BMI. Another thing is 25 to 30 it is overweight and after 30 it is obesity. तो इस चीज़ को बेसिक लर्न करने के लिए और मेमोराइज करने के लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज़ कि इन नंबर्स को आप अपने एज से रिलेट करिए. लाइक इफ़ वी सी द आर एज बिटवीन 18.5 to 25 years, इन दिस व्हाट हैपन्स इज वी हम लोग स्कूल भी क्रॉस कर लेते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, सम गो टू देयर जॉब, सम प्रोसीड टू देयर हायर स्टडीज़. सो दिस इज़ द एज ग्रुप वेयर वी टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन. सो इन दैट वी शुड बी हेल्दी. सो फॉर दैट 18.5 25 इज़ द हेल्दी रेंज ऑफ फॉर BMI. अगर जैसे हम 18 ईयर से कम होते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं, हमको नहीं पता होता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है इन अ मोर अडल्ट सेंस. तो दैट इज़ अंडरवेट. आफ्टर 25 टू 30 एज व्हाट वी डू इज़ कि हम तब भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. लाइक अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब स्विच कर रहे हैं या फिर जॉब से हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं या हायर स्टडीज़ के बाद लोग जॉब में आ रहे हैं. Like this all marriage stuff is also going on. 25-30 is also a bit of stressing period. So 25 to 30 is a overweight, and after 30 we know what we are going to do and we are clear in our minds and all is almost settled that what we have to do. That is obesity, that we are very lazy and we know what to do and this is all for your rest of the life in most of the cases. So it would be an easy pattern to learn that what is the healthy range, underweight, overweight and obesity range. So again we will take a quick range. This less than 18.5 it is underweight, between 18.5 to 25 it is healthy range, after 25 it is overweight till 30, and if your BMI crosses over 30 then you are obese and you should definitely reduce your weight. Now, coming back to the question, during fevers with every 18 degree Fahrenheit increase in body temperature, the basal metabolic rate changes by. The answer would be 7% increase. Next question, recommended
dietary allowance of iron according to ICMR 2010 for a 15-year-old girl is option A 32 mg per day, option B 27 mg per day, option C 35 mg per day, option D 28 mg per day. So what is RDA, recommended dietary allowance? It is the particular allowance that your body required plus what your body can absorb. तो हम ICMR डेट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो आपको सेट कर देता है कि पर्टिकुलर आपको इस न्यूट्रिएंट के लिए ये RDA है, ये रिक्वायरमेंट है पर डे का, दैट शुड बी फुलफिल्ड, अदरवाइज यू विल सफ़र फ्रॉम एनी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर. सो ईजी वे इज़ कि ऐसे तो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइक फॉर कैल्शियम, फॉर सोडियम, आयरन. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि हम पहले आयरन का देख लेते हैं वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. तो बेसिक इज़ वुमेन 21 mg पर डे. फिर उसके बाद इंक्रीज़ होता है, लैक्टेटिंग वुमेन की रिक्वायरमेंट होती है 25 mg पर डे. याद रखिए ये सब आयरन के लिए हो रहा है, डू नॉट मिक्स विद एनीथिंग एल्स. गर्ल्स 16 to 17 years 26 mg per day. For girls 10 to 15 years 27 mg per day. And maximum requirement is by the pregnant woman 35 mg per day. तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आपको एक रिदम फॉलो करना होता है. लाइक बेसिक यू जस्ट नीड टू लर्न द बेसिक वैल्यू दैट इज़ वुमेन 21 mg पर डे. अब 21 + 4 करेंगे तो 25 mg पर डे फॉर लैक्टेटिंग. देन +1 करेंगे तो 26 mg पर डे फॉर गर्ल्स 16 to 17 years. देन +1 करेंगे तो गर्ल्स 10 to 15 years 27 mg पर डे. एंड मैक्सिमम इज़ द प्रेगनेंसी फॉर 35 mg पर डे, दैट इज़ +8. So there is rhythm 4118 4118. So first the basic 21 mg per day plus 425 plus 126 plus 127 and plus 835. You just need to remember this order 4118. And it is the another thing is कि प्रेगनेंसी वुमेन का अगर आपको कभी पैटर्न में भी कंफ्यूजन हो, प्रेगनेंसी में हमेशा हर न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हाईएस्ट ही होता है. सो इन दिस पैटर्न द हाईएस्ट वुड बी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लीस्ट वुड बी वुमेन नॉर्मल अदर देन द ग्रोइंग एज एंड लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंसी. So and then you can have this subsequently that men least requirement is 17 mg per day. Boys for 10 to 12 years it is same as women 21 mg per day. For boys 16 to 17 years it is 28 mg per day, that is around +1 to girls 10 to 15 years. And for boys 13 to 15 years 32 mg per day. बट व्हाट हैपन्स इज़ कि इसमें जनरली अगर मेन का पूछा जाएगा मेन सेक्शन में भी तो सिर्फ मेन का ही पूछा जाएगा 17 mg पर डे, ना कि बॉयज़ का. सो इट वुड बी ईजी इफ़ यू ओनली रिमेंबर द RDA ऑफ आयरन फॉर ओनली मेन 17 mg पर डे. एंड वेयर एज बाकी वुमेन सेक्शन में यू नीड टू लर्न दिस पैटर्न 4118, क्योंकि आयरन जो होता है वो यूजुअली डेफिशिएंट होता है गर्ल्स में एंड वुमेन में. सो दैट्स वाई इस पे फीमेल्स पे ज़्यादा फोकस होता है. सो फॉर दैट क्वेश्चन रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस ऑफ आयरन फॉर अ 15-year-old गर्ल इज आंसर वुड बी 27 mg पर डे. आई होप आपको ये पैटर्न ईजी लगेगा समझने में. नाउ proceeding to the next question. Question 3. According to GNC 7 classification of high blood pressure, the cutoff for systolic and diastolic blood pressure, that is SBP and DBP, is option A SBP less than 120, DBP less than 80, option B SBP greater than 140, DBP greater than 80, option C SBP greater than 120, DBP greater than 90, option D SBP greater than 120, DBP greater than 80. So for this GNC 7 stands for the America's Joint National Committee. ये एक पर्टिकुलर कमेटी है जो आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और उसके रिलेटेड गाइडलाइंस पास करते हैं कि ड्यूरिंग हाइपरटेंशन व्हाट हैपेंस, व्हाट शुड बी द प्रॉपर SBP एंड DBP ऐसे करके. तो
the JNC7 was passed in 2003. आफ्टर डेट JNC8 भी आ गया है जो 2014 में आएगा. बट इसमें इतना टेंशन लेने कोई बात नहीं है. अगर क्वेश्चन में आया भी अकॉर्डिंग टू JNC8 what is the regular this SBP and DBP, then the answer would be same, क्योंकि the difference between JNC7 and JNC8 is only the age. JNC7 में एज का मेंशन नहीं था, वेयर JNC8 में सिस्टोलिक थ्रेशोल्ड का एज मेंशन है, दैट इज 60. सो जो कि बहुत कम चांस से पूछा जाएगा. तो यू ओनली नीड टू रिमेंबर इज दैट फॉर according to JNC7 and JNC8 the normal SBP would be less than 120 and DBP would be less than 80. So answer would be option A, SBP less than 120 and DBP less than 80. Now next question. The following serum parameters in biochemical evaluation of blood are indicative of liver disorder. Option A, serum bilirubin elevated. Option B, SGOT and SGPT lowered. Option C, serum albumin lowered. Option D, serum globulin elevated. Option E, serum alkaline phosphate lowered. तो जिन लोगों को जैसे ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ने में मतलब इंटरेस्टिंग लगता है या फिर थोड़ा फूड एंड न्यूट्रिशन से लिंक है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. बट फॉर दैट इट वुड बी लाइक टोटली न्यू थिंग फॉर यू. तो इसको ये जनरली आप ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका लिवर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है. तो फर्स्ट ट्राई एंड रिमेम्बराइज द फर्स्ट दिस टर्म्स. Serum bilirubin. This bilirubin is the pigment in blood. What happens is, for the very easy concept we will go to that, कि जब हमारा bilirubin level increase होता है blood में तो आपको जॉन्डिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका स्किन येलो हो जाता है, आपकी आई ज़्यादा वाइट हो जाती हैं और मतलब पुराने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं. तो फॉर एनी डिसऑर्डर दिस bilirubin कंटेंट इंक्रीजेस. सो ऑप्शन ए आपका होना ही चाहिए. ऑप्शन बी दैट इज SGOT एंड SGPT. दीज आर द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय लिवर सेल्स, जिसमें SGPT कुछ ज़्यादा ही लिवर स्पेसिफिक होती है. तो अगर ये जब भी हमारे लिवर सेल्स में कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ डैमेज होता है तो ये एंजाइम्स तुरंत रिलीज़ हो जाते हैं और देयर लेवल immediately go high. So in this the option is SGOT and SGPT lowered, whereas in actually it would go high. So हम इसको eliminate कर देंगे. Option B would not be the correct option. Option E is serum albumin. Albumin क्या होता है कि आपका एक टोटल प्रोटीन होता है जो आप ब्लड में सर्कुलेट होता है. ये आपकी बॉडी में हेल्प करता है ब्लड में कि आपका वाटर रिटेन रहे वेसल्स में और प्रॉपर मेंटेन रहे, स्वेलिंग वगैरह नहीं आए. तो फॉर दिस अगर आपका एल्ब्यूमिन लेवल लो चला जाता है तो आपका वाटर लीक होना स्टार्ट हो जाता है आपकी आर्टरीज से, वेसल्स से, बॉडी में, विच कैन कॉज स्वेलिंग. तो हमारा इसमें सीरम एल्ब्यूमिन लोअर्ड आता है. तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Now another term is serum globulin elevated. तो serum globulin क्या होता है कि it is a particular group of proteins. जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर होता है या कुछ भी इन्फेक्टेड होते हैं तो these immediately fight infections. So इसका लेवल तुरंत इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. अगर आपका ये ग्लोबुलिन लेवल एबनॉर्मल होता है तो आपको ये डॉक्टर्स मेंशन करते हैं, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं जिनसे आपका ये सब नॉर्मलाइज होता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग. तो ये भी हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए जो भी हमारा लिवर डिसऑर्डर होगा. नेक्स्ट इज सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लोअर. एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो जनरली हमारी बॉडी टिश्यूज़ में पाया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर बोन्स एंड लिवर. तो ब्लड लेवल जैसे हमारे इंक्रीज़ होते हैं, जैसे हमारे बोन्स ग्रो होते हैं, हम ग्रो होते हैं तो हमारे ब्लड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होते हैं तो हमारे ब्लड लेवल इंक्रीज़ होते हैं.
तो दैट्स वाई एट ड्यूरिंग द चाइल्ड एज, ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज हमारे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे और एक जगह मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो उस बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ये लेवल्स इंक्रीज़ होंगे। सो एवरीथिंग शुड बी इंक्रीज एक्सेप्ट द सीरम एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वुड बी ओनली ऑप्शन ए, सी एंड डी। तो आंसर वुड बी ऑप्शन 3 हमारा सीरम बाइलिरुबिन, SGOT SGBT, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्कलिन फॉस्फेट, ये चारों इंक्रीज होने चाहिए ड्यूरिंग एनी लिवर डिसऑर्डर, वाइल सीरम एल्ब्यूमिन लोअर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, बी पॉलीडिप्सिया, सी हाइपोग्लाइसीमिया, डी हाइपरग्लाइसीमिया एंड फाइनली हाइपोफेजिया। तो इसके आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए बी एंड सी, ऑप्शन बी ए बी एंड ई, ऑप्शन सी ए बी एंड डी, ऑप्शन डी बी सी एंड डी। तो पहले इस चीज़ में प्रोसीड करने से पहले यू शुड नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। There are usually 2 types of diabetes other than gestational diabetes and other. So type 1 and type 2. तो most common type of diabetes is type 2 diabetes, जो आप आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजुअली होता है। इन टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इस वजह से आपको मतलब ये थ्रू जेनेटिक्स होता है, एनवायरनमेंट होता है, ऑटोइम्यून फैक्टर्स होता है, तो इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। वेयरएज़ टाइप 2 डायबिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। इसलिए बोलते हैं जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं आप ये मत खाइए, ये मत कीजिए, वो मत करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंटिव है, वेयरएज़ टाइप 1 डायबिटीज़ डज नॉट। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो व्हाट वी डू इज़ वी एक्चुअली गिव इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, ओरल मेडिसिन, डाइट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अगर आपका इंसुलिन लेवल ज़रा सा भी डिक्रीज होता है देन यू कैन फेंट। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू शुड मतलब हर टाइम आपको भूख लगता रहेगा, इंक्रीज थर्स्ट रहेगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा, ब्लड विजन रहेगा क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं लेवल, और आपको हर टाइम एक टायर्ड फीलिंग आएगी कि मतलब अब बस और नहीं होगा। एंड देन टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है बट वो इतना ज़्यादा या तो प्रोड्यूस नहीं हो पाता या फिर आपकी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है इंसुलिन को। तो उसके क्या होता है कि आपको नमनेस फील होता है, फटीग फील होता है, आपकी जो अगर आपको कभी चोट लग जाए तो बहुत स्लोली हील होगा, ब्लड क्लॉट ईजिली नहीं होता है, और ये बहुत ऐसे ही चल जाता है, मतलब यूजुअली दे गो अंडर एस्टिमेटेड एंड दीज आर कॉज्ड बाय द लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एजिंग। तो बट दिस इज़ अ प्रिवेंटिव डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ द प्रिवेंटिव। तो इसमें भी हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, किसी को ओरल मेडिसिन देते हैं, ऐसे करके। तो इन बोथ डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 दे आर इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज हंगर, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड you feel more fatigue or lazy kind of thing. तो ऑप्शन ए। अब ये चीज़ आपको ऐसे तो समझ में आ जाती है बट दीज आर द टेक्निकल टर्म्स। व्हाट हैपन्स इज लाइक पॉलीयूरिया, तो आप इसको ब्रेक करिए, पॉली प्लस यूरिया। तो जो पॉली होता है वो सिग्निफाई करता है मल्टीपल या इंक्रीज, तो एंड यूरिया इज योर यूरिनेशन। तो पॉलीयूरिया मीन्स आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। तो ऑप्शन ए वुड बी राइट। ऑप्शन बी पॉलीडिप्सिया, तो ये भी आपका क्या होता है कि आपको जब एक्सेसिव थर्स्ट लगती है तो डिप्सिया उस चीज़ के लिए आता है, थर्स्ट के लिए। तो पॉली इज़ एक्सेसिव एंड डिप्सिया इज़ थर्स्ट, तो आपको एक्सेसिव थर्स्ट लगी, दैट इज़ पॉलीडिप्सिया। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। देन व्हाट इज़ हाइपो एंड हाइपर। हाइपो क्या होता है कि आपका कुछ भी अंडर स्टेट होता है तो वो हाइपो होता है, हाइपर होता है एक्सेसिव, जैसे आपको हाइपर टेंशन हो गया, या आप बोलते हैं कि नॉर्मली बोलते हैं किसी चीज़ को कि मैं इस चीज़ को लेके हाइपर हो रही हूँ ऐसे करके, तो मतलब आप बहुत एक्सेसिव हो रहे हो।
हाइपो इज अंडर, हाइपर इज एक्सेसिव. तो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया वर्ड रिप्रेजेंट्स कि आपको कितना ग्लूकोज मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसके रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चन, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास प्रेफरेबली. तो हाइपोग्लाइसेमिया जिसकी मतलब कि आपको कम ग्लाइसेमिक की ज़रूरत है इंडेक्स की. वेयर एज हाइपरग्लाइसीमिया आपको एक्सेसिव भूख लग, मतलब कि आपको एक्सेसिव ग्लूकोज चाहिए, आप इसलिए ज़्यादा खाते हैं, मतलब ऐसे करके. देन लास्ट इज ऑप्शन ई, हाइपोफेजिया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस. तो अब इसमें देखा जाए तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3, A, B and D, that is polyuria, polydipsia and hyperglycemia, excessive urination, excessive thirst and excessive need of blood glucose. So I hope आपको ये 5 questions and related material आपको याद रहे and you must be remembering all those tricks. So if you want to give any other suggestion, then you can write it on examination.catalyst@gmail.com or you can mention it in the comment box. And please बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, so that we can improve on our behalf. Till then, keep learning, keep achieving. Thank you. And if you do like the video, please like, share and comment and subscribe the channel. Thank you so much.